محنت کے ساتھ جو گورنمنٹ نے آپ کو ایک ذمہ داری آپ پہ اعتماد کر کے دوسری انسٹیٹیوشن دی ہوئی ہے، آپ ایسے جو بااثر طریقے سے اس کو انجام دیں، اور ایک جو ہے اپنا بھی ایک جو محکمہ صحت کا ایک امیج ہے وہ ایک مثبت امیج لوگوں میں اجاگر کریں کہ جی وہ نظر آئے کہ آپ لوگ اپنے جو کام ہے وہ پوری ڈیڈیکیشن اور محنت سے کر رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس میں کوئی بھی بچہ جو ہے وہ رہ نہ جائے جس کو کچرے کا ٹھکانا لگے. اور لیڈی ہیلتھ ورکرز ہماری موجود ہیں تو ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر گھر میں جا کے بطور جو سوشل موبلائزر ہیں ان کو ریفرنس لسٹ بھی ملیں گی وہ والدین کو دیں اور انشور کریں. اور اگر کوئی بچہ رہ جاتا ہے تو اس کو یہ آپ نے یقینی بنانا ہے کہ کوئی اس کو مطلب ٹیکہ لگنے سے کوئی بھی رہ نہ جائے. این اے کی لسٹیں بنانا ہے اور اس کے مطابق جو ہے اپنے بچوں کو کور کرنا ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ نے مفصل طریقے سے خسرے کی مہم اور اس سیمینار کے بارے میں آگاہی دی. اب ملٹی میڈیا بریفنگ کے لیے میں جناب ڈاکٹر مشاہد اقبال صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مہمانان گرامی کو ملٹی میڈیا کے بارے میں دیں. ڈاکٹر مشاہد اقبال صاحب. یہ سب سے پہلے جو ہماری مہم ہے وہ خسرے کی، اس کو کہتے ہیں اسپیشل آرگنائزیشن جو بھی ہے ٹھیک ہے 2018 کی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر سب سے پہلے کہ خسرہ کیا ہے. خسرہ ایک وائرس سے پھیلنے والی بیماری ہے جس کے جو بچے کے آزاد ہیں ان کو متاثر کرتی ہے، اور اس کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ کنٹیجیس ہے. ایک بچے سے دوسرے کو لگتی ہے. جو بچے اسکولوں میں ہوتے ہیں ایک بچہ جائے گا اسکول جائے گا وہ جا کے سب کو اسپریڈ کرے گا. ٹھیک ہے، اور یہ پھیلتی ہے سانس کے ذریعے. جو انفیکٹڈ کنڈیشنز ہیں اور جو ہے اس کے اسکرین کے ذریعے زیادہ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، اور سانس کے ذریعے زیادہ پھیلتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو باڈی پر فلوئڈز کے ذریعے بھی پھیل سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی علامات کیا ہے؟ اس کی علامات یہ ہے فیور ہے، بخار ہوتا ہے، بچے کو کھانسی ہوتی ہے، اس کا ناک بہنا ہوگا، گلا خراب ہوگا، اور اس کے علاوہ اس کی آنکھیں خراب ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر کسی بچے کی آنکھیں خراب ہیں تو اس کو جب ڈاکٹر کو ضرور دکھائیں تو اس کو خطرہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کے وائٹ اسپاٹس ہوتے ہیں جو کہ منہ کے اندر ہوتے ہیں، جو کاپلر اسپاٹس ہوتے ہیں، بٹ یہ بہت ارلی اسٹیج پر ہوتے ہیں اور بہت جلدی غائب ہو جاتے ہیں. مطلب کہ یہ ڈاکٹر ہی جو ارلی اسٹیج پہ بچہ جاتا ہے اس کو دیکھ سکتا ہے، عام بندے کو آپ کو نہیں دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ اس کے جسم کے اوپر ایک ریش بننا شروع ہوتا ہے جو کہ ایک ریش جس کو اردو میں ہم مانے سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ جو ہمارے تحصیلی محلہ میں جو میزلس کے کیس جو مسئلے کے کیس رپورٹ کیے گئے تھے وہ 2017 میں 3 تھے اور 2018 میں 2 کیس رپورٹ کیے گئے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ. اور جو ہمارے پاس یہ جو امیونائزیشن جو کیمپین ہم چلا رہے ہیں یہ 12 دن کی ہوگی جس میں ٹھیک ہے صبح 8 سے لے کے شام 5 بجے تک کام کریں. اور اس کے اندر ہم تمام بچے جن کی عمر 6 ماہ سے لے کے 7 سال تک ہوگی ان تک کو ہم حفاظتی ٹیکے لگائیں گے خطرے سے نجات کے. اس کیمپین کے لیے ہم نے تیاریاں کی ہیں. اس کے تیاری کے مختلف مراحل ہوتے ہیں. جو بھی کیمپین ہوتی ہے اس کی تیاری کے اندر سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے وہ ایک مائکرو پلاننگ ہوتی ہے تاکہ ہم اس کے اندر اپنی جو ہمارے پاس لوجسٹکس ہیں ایچ آر ہے جو ہمارے پاس چیزیں ریکوائرڈ ہیں اور ہمیں جو ہماری ٹارگیٹ پاپولیشن ہے ہم اس کے حساب سے ایک طرح پلان پریپیئر کرتے ہیں جس کو مائکرو پلان کہتے ہیں. ہم نے میزلس کے لیے مائکرو پلان اسپیشل پریپیئر کیے ہیں اور یہ ہمارے ڈاکٹر فرد صاحبہ نے بہت زیادہ اچھا خصوصی انہوں نے اپنا ٹائم دیا اور رات 10 بجے تک بیٹھ کے ان کو دیکھتی رہی اور انہوں نے یہ اسپیشل پریپیئر کروائی. تو یہ اگر ٹائم کو ڈرا کر اور اس کے علاوہ ہم نے ٹریننگ کنڈکٹ کروائی ہے اور یہ ٹریننگ جو ہے تمام اسٹاف کو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپ کا اسٹاف کا جو کہ خاص طور پر جن کے اندر جو 6% تھے ان کی ٹریننگ الگ ہوئی ہے. جو 6% کے علاوہ جو سوشل موبلائزر تھے ان کی ٹریننگ الگ ہوئی ہے. جو اسسٹنٹ تھے جو ٹیم اسسٹنٹ تھے ان کی ٹریننگ الگ ہوئی ہے. تمام اسٹاف کو بھی ٹرین کیا گیا ہے تاکہ ان کیس کو خیال نہ ہو، اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ ہو اگر ان کیس کو بہت ہی تو اس کو ہم پریپیئر کیا ہے اس کے لیے ہم نے ٹریننگ کی ہے. ہم نے سوشل موبلائزیشن کی ہے مطلب کہ سوسائٹی کو بتایا جائے گا اس مہم کے بارے میں کیونکہ جب تک سوسائٹی کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اس کی مین ریزن یہ ہے کہ جو ہمارے پاس جو بچے ہیں جن کو ہم نے انجیکشن لگانے ہیں وہ بچے اس دفعہ ہم پولیو کیمپین کی طرح گھروں میں جا کے بچوں کو جیسے قطرے پلاتے ہیں ہم ٹیکے نہیں لگائیں گے. تو گھروں سے بچے کو نکال کر لانا ایک سینٹر کا بھی ایک
अवेयर होगी वो अच्छी होगी, वो कैंपेन अच्छी होगी, सोसाइटी अवेयर होगी इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि हम ये हमारा जो बीमारी है और इंजेक्शन है की क्या अहमियत है। उसकी अहमियत को उजागर करने के लिए हमने मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं। महकमा सेहत ने मुख्तलिफ तरीके अपनाए हैं जिसमें लेडी हेल्थ वर्कर्स जो है वो मुहिम से 3 दिन पहले से जाकर घर घर जाकर तमाम बच्चों को रजिस्टर करेंगे और वो रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुकी है और तमाम बच्चों को नोट करेंगे और उनको स्लिप देंगे और वो बच्चे जो है उनको महकमा सेहत के बारे में की इस मुहिम के बारे में बताएंगे। सोशल मोबिलाइजेशन के लिए जो हमने इसके अलावा जो व्हीकल्स हैं मोबाइल पार्किंग अरेंज की है उसके अंदर हमने ये रिक्शा जो कि आप देख रहे हैं इनको हमने इनके ऊपर पैराफ्लेक्स लगाए हैं और इनके थ्रू हम इनके अंदर बायोमेट्रिक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट करेंगे पूरे एरिया के अंदर जिस एरिया में काम होगा, ठीक है। तो उसके अलावा स्कूलों में जाके हमने बच्चों को बताया ताकि वो अपने बच्चे जो होते हैं वो घरों में जाके अपनी कम्युनिटी में जाकर ज़्यादा अच्छा मैसेज को स्प्रेड करते हैं। और इसके अलावा लिटरेसी वॉक्स हमने की हैं डिफरेंट एरियाज में और आर्टिंग तरह सेमिनार की बात की जाएगी और इसके अलावा सेमिनार कंडक्ट किए गए हैं पहले और जिस सेमिनार में आपको पार्ट ऑफ दिस एक्टिविटी। इसके अंदर जो जैसे डॉक्टर करत ने आपको पहले बताया है कि हमारी जो टारगेट है वो 35,015 बच्चे हैं जो हमारा खतरे के बच्चे जो जिनको टारगेट जिनको हमने पूरी तहसील में टीके लगाए और इसके लिए 14 यूसीएम है और 15 प्रैक्टिस सेंटर है जहाँ पर कोई भी बच्चा जाकर टीका लगवा सकता है। इसके अलावा हमारे पास 33 और टीमें हैं जो कि मोहल्लों में जाकर टीके लगाएंगी। मगर इसमें बताने की बात यह है कि इस तरह घरों में नहीं जाएंगे जाके कैंपेन के अंदर जो बच्चे हैं मतलब लोग ये एक्सपेक्ट ना करेंगे पोलियो की तरह जैसे घरों में आते हैं इस दफ़ा वो नहीं जाएंगे, ये चीज़ कन्वे करने की खास तौर पर ज़रूरत है ताकि कोई बंदा इंसिस्ट ना करे या उसमें हम खाने वैक्सीन ले जाकर इंजेक्शन नहीं लगा सकते। और ड्यूरिंग कैंपेन जो हमने 6.7 मिलियन जो बच्चे हैं उनको हम इंजेक्शन लगाएंगे हमारे पास से टीके। और इस कैंपेन को सुपरविजन की जाएगी, सुपरवाइज की जाएगी। ये कैंपेन ऐसे नहीं है कि जस्ट हम टीमों को भेज देंगे और वो जाकर टीके लगाएंगे मर्जी आएगी करेंगे नहीं है कि नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है बल्कि उनको ऊपर से मॉनिटर किया जाएगा। सबसे पहले जो किसी यूसी की टीम है उनको यूसीएमओ है उनके वो मॉनिटर करेंगे और वो जरा अपनी यूसी को वन सुपरवाइजर पर वो उसको मॉनिटर करेगा। उसके बाद सेकंड लेवल सुपरवाइजर है तहसील और डिस्ट्रिक्ट लेवल के सुपरवाइजर है, ये वन सुपरवाइजर पर फिर 5 यूसी है, ये सेकंड लेवल सुपरवाइजर है, ये जाके जब एक से ज़्यादा यूसियों को चेक करेंगे यूनियन काउंसिल को चेक करेंगे और वहाँ पर जो है विजिलेंस की जो कैंपेन है उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे। और इसके अलावा थर्ड लेवल सुपरवाइजर है जो कि सूबाई सुपरवाइजर है, ये हर डिस्ट्रिक्ट के लिए एक मुकर्रर किया गया है और ये जो तमाम डेली एक्टिविटी होगी शाम के वक्त इसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और वो रिपोर्ट महकमा सेहत सॉफ्टवेयर तैयार किया उसके लिए फौरी तौर पर सुबाई महकमा सेहत को भेजा जाएगा, अफसर को भेजा जाएगा। तो थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे जो तफसील से ब्रीफिंग दे रहे थे। अब मैं सबसे खिताब देता हूँ जनाब डॉक्टर समीना भट्टी साहबा MSc के कोटा क्योंकि वो भी हमारे सरल हिस्से के सिपा सलाह हैं और वहाँ पर सबको वैक्सीन जो है सब बच्चों को पहले भी लगाते हैं। इस पर जो हमारा रोल है अगर किसी बच्चों को कोई मसला होता है तो माँ बाप परेशान होते हैं हम हाजिर हैं। हमारे डॉक्टर 24 घंटे किसी भी इशू के सिलसिले में हर 40 के साथ अस्पताल में मौजूद होंगे। अगर आप लोगों को किसी बच्चों को कोई फिक्र होती है कि ये फिक्र लग जाती है वो इंशाअल्लाह होगा कुछ नहीं, बेहतरीन वाइज यूज़ की जा रही हैं, ट्रेन अमला आप लोगों के पास पहुँच रहा है। लेकिन किसी किस्म का आप लोगों को कोई सवाल पूछना हो कोई मसला देखना आ जाए तो हमारा अमला जो है 24 घंटे अस्पताल में मौजूद है। सुबह के वक्त हमारे 2 पीडियाट्रिशियन हैं, दोनों की जिम्मेदारी है उन्होंने हर किसी भी रिएक्शन के सिलसिले में हमारी हर चीज़ मौजूद है। कोई मसला हो आप जरूर हमारे पास आए। और इस मुहिम का हिस्सा मैडम ने कहा बच्चे हम सब के हैं और इसमें हमने अपने बच्चों को खसरा से फ्री करना है। एक भी बच्चा ऐसा ना हो जिसे ना लगे और पूरी अपने हमसायों को आप समझाएं। आप जो हमारे वर्कर्स फील्ड पे जा रहे हैं वो हर माँ को हर बच्चे को कहें कि उन्हें ज़रूर लगवाना है और इस सिलसिले में 3 घर घर पहुँच रहे हैं। तो हमें पाकिस्तान को खसरे से फ्री करना है, किसी एक बच्चे को भी इस चीज़ से महरूम हमें नहीं रखना है। तो होटल हॉस्पिटल आपको सारी सर्विसेज जो दे रहे होते हैं कुछ कहीं कमी पेशी हमने
तो ये यहाँ मुझे मौका मिल गया बात करने का कि आप मेडिसिन के सिस्टम में हमें जो डोनेशन देना चाहें, आप दवाइयों के शक्ल में हमें दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो जरूर दें ताकि हर आगे गरीब से गरीब अपने तक चीज़ें पहुँच सकें। हम 100 सर्विस कर रहे हैं वहाँ पर, गायनी की आपकी 30 सर्विस होती हैं और प्राइवेट क्लिनिक के निस्बत ही बेहतर सहूलतें आप सबको मैसर होती हैं, स्पेशलिस्ट मौजूद होती हैं, डॉक्टर्स देख रहे होते हैं, कहीं सर्जन अल्लाह का शुक्र है यहाँ मौजूद हैं। तो आप सबका कॉपरेशन भी चाहिए। कुछ चीज़ें हम नहीं भी फराहम कर पाते तो भी हम कोशिश पूरी तरह गवर्नमेंट लेवल पर भी कर रहे हैं कि हमें बेहतरीन इक्विपमेंट मिल जाए, और हमारी सबसे बड़ी कोशिश हम ये कर रहे हैं कि बिल्डिंग मिले, हमारी कंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। वो ये हॉस्पिटल 1967 का बना है, अभी हम सब की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफी बात है। तो सियासी आईडी से भी दरख्वास्त है, आप सब से भी है कि यहाँ पर हमें नई बिल्डिंग चाहिए, कमरे बनने सब सर्जन्स के लिए, यहाँ काम के डॉक्टर मौजूद हैं, ओटी हमारे पास नहीं है। ये वो तमाम मसाइल हैं जो अपने गार्जियन को बताएं और वो हमें ये तमाम सहूलतें फराहम करें ताकि हम आप सबको बेहतरीन सहूलतें आगे से काम कर सकें। और नशे की मुहिम में हम सब इस जो हमारी ये मुहिम है इसके हम सब जिम्मेदार हैं, हम सब इसके फौजी हैं और हमें इसे कामयाब बनाना है। मैडम की कोशिशों को हमने इंतहा दर्जे तक इंशाअल्लाह कामयाब बनाना है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। ये थी MSCHO कोटा वर्तमान डॉक्टर मीना भट्टी साहबा। मीडिया के हवाले से एक बात करनी है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मसेद ने हमारे डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है कोटा डॉक्टर फरद इब्राहिम साहबा को इस मुहिम के हवाले से मीडिया फोटो पर्सन बनाया है। मुहिम से पहले, दौरान मुहिम या मुहिम के बाद इस मुहिम के हवाले से किसी किस्म की जो मालूमात दरकार हुई तो वो डॉक्टर साहबा का फ़ोन नंबर हर एक के पास है, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। अब मैं दावत इख्तियार देता हूँ जनाब मोहतरम राजा ज़हूर अकबर साहब, चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कोटा के आप मेरे भाई डॉक्टर साहिबान, कम्युनिटी से आए हुए मेरे बहन भाई, खुसूसन वर्कर और सुपरवाइजर, आज का दिन मैं समझता हूँ अहमियत का हामिल है। इस हवाले से हुकूमत 2008 से के हवाले से मुहिम चला रही है और इसमें भरपूर जो है वो काम भी कर रही है। तो मैं सोचता हूँ कि हमें चाहिए कि इस मुहिम को हमें हर लिहाज से कामयाब बनाना है। उसको कामयाब किस तरह बना सकते हैं, उसमें वर्कर्स को अपने काम करेंगे, डॉक्टर साहब भी अपना काम करेंगे, लेकिन कम्युनिटी की जो है वो पार्टिसिपेशन इंतहाई जरूरी है। इस हवाले से जब कम्बिनेशन होगा आपस में इंशाअल्लाह वजीर बेहतरी आएगी। कई हमारे बहनें भाई ऐसे भी होते हैं जो किसी वजह से इनकार करते हैं, नहीं लगवाना चाहते, लेकिन इसमें हर लिहाज से बेहतरी है। कोई इनकारी वाला हो तो मैं समझता हूँ कि हमारे कौंसलर साहिबान, चेयरमैन यूनियन काउंसिल, पूरी यूनियन पूरे तहसील कोटा में जो है वो मौजूद हैं। जहाँ भी आपको इस हवाले से जरूरत पड़े हमसे रब्ता करें, हम इंशाअल्लाह उनसे रब्ता करके कोशिश करेंगे कि हर बच्चे को जो है वो 6 माह से 7 साल का बच्चा है उसे टीका जरूर ना करें। तो मैं मीडिया वाले भाइयों से भी गुजारिश करूँगा कि वो सोशल मीडिया में भी अपनी सही करके मुहिम चलाएं और प्रेस में भी इस हवाले से काम करें। तो मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया डॉक्टर साहिबान का मुझे यहाँ पे दावत दी और खुसूसन लेडी हेल्थ वर्कर, सुपरवाइजर,
जो फील्ड में जाके काम करती हैं, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ और उनका इस हवाले से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये पूरा शहर हमारा है, यह हमारी बहनें भाई बेटियाँ बच्चे वो हमारे हैं, तो इनकी ये खिदमत कर रहे हैं। इस हवाले से मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इनमें साहब ने बात की दवाइयों के हवाले से, डॉक्टर साहब आपको इस हवाले से जब कोई दवाई की जरूरत हो, कोई मुश्किल हो, बिल्डिंग तो थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन दवाइयों के हवाले से या कोई इस तरह का मसला मसाइल हो तो हमसे जरूर आप देखिए। यहाँ पर बहुत सारे मुखैर हज़रात मौजूद हैं। मुखैर हज़रात की मौजूदगी में अगर किसी को दवाई ना मिले तो ये बहुत बड़ी जो है मैं समझता हूँ हमारी जो है वो बदनसीबी है। तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि जब भी कभी दवाई की किसी चीज़ की जरूरत हो तो हमें मेरे जिक्र हमारे कई ऐसे भाई मुखैर हज़रात से रब्ता करें, इंशाअल्लाह वो नज़ीर हम भरपूर तरीके से मुहैया करें। तो मैं एक साथ के साथ इजाज़त चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब राजा ज़फ़र साहब कोटा मुखिया कोटा। तो मैं खुश आमदीद कहता हूँ जनाब मलिक हुसैन साहब की मुखिया कोटा को कि वो हमारे दौरान तकरीर तशरीफ लाए हैं। खुश आमदीद से हज़रत जो कोटा में मीडिया का किरदार है खासकर महकमा सेहत के हवाले से वो इंतहाई मुस्बत और इंतहाई दोस्ताना किरदार है। और हर महीने में मीडिया ने हमारे डिपार्टमेंट की भरपूर कवरेज की है और कई दफ़ा हर इंसान से हर डिपार्टमेंट से छोटी मोटी खामी भी हो जाती हैं, लेकिन इनका शुक्रिया कि उन्होंने हमारे छोटी मोटी खामियों को नज़रअंदाज किया। और अब मैं दाद खिताब देता हूँ जनाब राजा इमरान हमीद साहब को कि मीडिया को अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब राजा इमरान हमीद साहब। असला के हवाले से मुहिम को, डेंगू के हवाले से मुहिम को, मैं समझता हूँ जब से 2 ख़वातीन हमारे हॉस्पिटल में आई हैं, हमारे इलाका में आई हैं, ये इलाके में तब्दीली वाज़ह तौर पर नजर आ रही है। मैं इलाके के की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और खुसूसन LIW और सुपरवाइजर का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये घर घर जाकर जिस तरह मुहिम कामयाब करती हैं, असल शुक्रिया इनका बनता है। मैं अपनाओं से गुजारिश करूँगा कि इनके लिए पता चलता है किसी की तनख्वाह नहीं मिल रही है, किसी को मसाइल है, किसी के घरों में फालतू की नौबत है, तो बराए मेहरबानी इनकी तरफ तवज्जो दें जो असल काम कर रही है, जो असल मिशन को कामयाब बना रही है। ये कामयाब होंगे तो मेहरबानी भी कामयाब होंगे। तो राजा ज़फ़र साहब ने फरमाया कि दवाइयों के हवाले से मुखैर हज़रात, मैं समझता हूँ कि मुखैर हज़रात का काम ठीक है, लेकिन हुकूमत का काम बनता है कि यहाँ पर अस्पताल में सेहत के हवाले से जो कमी है, जो सहूलत चाहिए उसको बर वक्त मुहैया किया जाए। मुखैर हज़रात को बात जाते हैं। बहुत शुक्रिया सबका। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे भाई जनाब राजा इमरान हमीद साहब जिन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। तकरीब जारी रहने के सिलसिले में मैं पहला उठाऊँ और सामने को बताऊँ कि हमारी जो ये मुहिम है ये 15 तारीख से 15 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक होगी। इसमें हमारी टीमें जो है वो पोलियो इस हवाले से थोड़ी एक मुफरद बात यह है कि पोलियो की टीमें हमारी घर घर जाती हैं। हमारी ये जो मसला मुहिम वाली टीमें हैं ये आपके मोहल्ले में सिर्फ एक जगह बैठेंगी। हमारे जो सोशल मोबिलाइजर होंगे उसके साथ वो हाउस को विजिट करेंगे और तमाम बच्चों को जो हमारा फिक्स सेंटर होगा किसी गली में किसी मोहल्ले में, इस सिलसिले में आप तमाम हज़रात से ये गुजारिश है कि अगर कहीं कोई आप देखते हैं कि कोई आदमी इस बात का उठता है कि आपकी घर मुहिम हो, तो ये घर मुहिम नहीं है। तो मैं समझाना जो है कि इस तकरीब में शामिल तमाम हज़रात का ख़ुसूसी फर्ज है। अब
मीडिया की तरफ से जनाब असगर जानी साहब को मैं दावत देता हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें, क्योंकि मीडिया के साथ हमारी बहुत ज़्यादा दोस्ती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी राजा साहब, मोहतरम डिप्टी DHO डॉक्टर फजल इब्राहिम साहिबा, डॉक्टर समीना साहिबा, MS कोबरा, जनाब चीफ ऑफिसर मालकुल साहब और दीगर मेरे भाइयों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। आज खसरा के हवाले से ये तकरीर मुनक़्क़िद की गई है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह पंजाब हुकूमत इन मूजी अमराज के खात्मे के लिए इक़दामात करती है, उसको कामयाब बनाने के लिए तहसील हेडक्वार्टर स्टाफ और डिप्टी DHO डॉक्टर फजल इब्राहिम और MS डॉक्टर समीना पट्टी अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोई भी कौम उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकती जब तक हमारे बच्चे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं वो सेहतमंद और तवाना नहीं होंगे। इसमें लेडीज वर्कर और सुपरवाइजर और दीगर जितना भी अमला है वो अपनी भरपूर कोशिश कर रहा है। पोलियो मुहिम हो, खसरा मुहिम हो या डेंगू का प्रोग्राम हो, इन्होंने हमेशा भरपूर किरदार अदा किया। ये वजह है कि कोटा में डेंगू का कोई केस जो है वो आज तक जो नहीं हुआ। बाकी इसमें जो वही है कि 6 माह से 7 साल तक के बच्चों को जो कतरे पिलाने वाली मुहिम है, जहाँ ये टीमें घर घर जाकर हर यूनियन काउंसिल में जाकर महलों में जाकर अपना काम करती हैं। वहाँ पर सिविल सोसाइटी और हम सब लोगों का, चाहे वो प्रेस से हो, चाहे वो मुतालिब से हो, सबको अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा, क्योंकि गरीब और महलों में बाढ़ ख़वातीन ये समझती हैं कि ये पोलियो के जो कतरे पिलाते हैं ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये सही नहीं है। इस हवाले से कई दफा ये आसिफ साहब को और इनकी टीमों को मसाइल पेश हुए हैं। इंशाअल्लाह हमारे इस कोटा सिटी में जहाँ भी ये होगा, हम इंशाअल्लाह जहाँ भी काम करेंगे, हम आपके जाना इस मुहिम को जो है वो भरपूर तरीके से कामयाब करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। बाकी जिस तरह डिप्टी DHO साहिबा अपना काम बड़े अहसन तरीके से करती हैं और हर चीज पे नजर रखती है, इसी तरह मैं समझता हूँ कि MS डॉक्टर समीना पट्टी साहब के आने से अस्पताल की हालत बहुत बेहतर हुई है। हम अक्सर अस्पताल में जाते हैं, बजाय इसके कि हम कोई मनफी चीज कह रहे हैं कि कोई इनमें खामी होती है, हम इनको जाकर बताते हैं कि ये खामी है, वो इसको दूर कर देते हैं। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर ऑपरेशन का सिलसिला भी जारी है। सर्जन डॉक्टर भी 5 चुके हैं, दीगर डॉक्टरों की डॉक्टर साहिबान बड़ी खेल में मौजूद है और इंशाअल्लाह ये बहुत फिर निकल आएगा। मैं आखिर में आप सबको मशहूर हूँ और यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मीडिया के हवाले से हम सोशल मीडिया पर अखबार के जरिए आपको ये खसरा के हवाले से अपनी आगाही मुहिम जारी रखेंगे और जहाँ फील्ड में भी हमारी जरूरत पड़ी हम इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब असद जानी साहब, दौरान तकरीर जनाब डॉक्टर आरिफ पेशी साहब तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें खुशामदीद कहते हैं। उसके साथ ही साजिद अब्दुल्ला साहब तशरीफ लाए हैं, हम उन्हें भी खुशामदीद कहते हैं। हमारी ये जो तकरीब है, इस तकरीब में हम ये चाह रहे हैं कि भरपूर तरीके से जितने भी कम्युनिटी के अफराद हैं वो हमारे साथ शामिल हों और ये इतने अच्छे तरीके से तकरीर जो है या हमारी मुहिम कामयाब हो कि जिस तरह आज तक 10 साल हो गए हैं तहसील कोटा में हमारा कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ और हमारी ये कोशिश है और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये मुहिम जारी रहे और इस सिलसिले में भी ये LPO
से होम डिपार्टमेंट की तरफ से वो भेजना हो। मैं दाद खिताब देता हूँ डॉक्टर आर प्रेसी साहब को कि आए और अपने नेक ख्याल का इजहार करें। जनाब डॉक्टर आर प्रेसी साहब आपकी कबूल मालूम। उससे बढ़कर मेरे तमाम डॉक्टर सुपरवाइजर्स LHPs और पैरामेडिकल स्टाफ अस्सलाम मैं आपके साथ 2-3 मिनट लूँगा क्योंकि आप सबको हर चीज़ की आगाही हो चुकी है कि हमने किस तरह इस कंटेंट को आगे लेकर चल रहे हैं। मैं हमेशा की तरह आपको ये कहूँगा कि सत्ता जारिया वो होता है जो काम आप कर जाते हैं जिसमें आप कोई टेल नहीं देते और वो चलता रहता है। आप अपनी ड्यूटीज बिलाशुबा अपने हॉस्पिटल में मुख्तलिफ अमूर करते हैं, लेकिन ये वही नहीं होती है, ये शायद उस ड्यूटी में उस तरह शामिल नहीं जिस तरह की आपकी कमिटमेंट होती है। जब आप किसी मर्ज को मुल्क से, किसी ज़रिए से, किसी तहसील से खत्म करने की कोशिश करते हैं, वो जो आपका मिशन होता है मैं समझता हूँ वो सत्ता जारिया है। और आपका ये सत्ता जारिया अगर किसी एक की जान को बचा गया तो फिर वो ऐड आप पर साबित हो जाती है जिसने एक जान को बचाया गोया उसने सारे इंसान को बचाया। तो मैं आपसे वादा रखता हूँ कि इस खतरे की मुहिम में जहाँ जहाँ भी आप जाएं, जो भी आपको वसाइल है, चाहे वो आप मीडिया के जरिए करें, चाहे वो आप कॉन्फ्रेंस के जरिए करें, चाहे घर घर जाकर मुहिम से के जरिए करें, स्कूलों के जरिए करें, उलमा-ए-किराम के जरिए करें, या कोई भी आजकल सोशल मीडिया बड़ा अपडेट है उसके जरिए करें, आपकी खिदमत अल्लाह की बारगाह में हमेशा एक अफसर दर्जा रखेगी और आप उसको अजर अज़ीम आपको मिलता रहेगा। ये आपका शोबा मेडिकल का जो शोबा है ये खुशनसीब लोगों के लिए है, हर एक हिस्से में ये शोबा नहीं आता। अल्लाह ताला चंद लोगों को हलाकों लोगों में से मुख्तलिफ कर देता है कि आप इस शोबे में आए और न सिर्फ अपनी रोजी का सबब बने, अपने बच्चों की बेहतरी का सबब बने, बल्कि आप अपने और अपनी फैमिली की रोजगार के अलावा आपका पूरे माशरे की जिम्मेदारी डाली जाती है और वही जिम्मेदारी अल्लाह ताला जिसको पसंद करता है। तो आपकी अल्लाह ताला के पसंदीदा कोई नहीं है, वो मेरे भाई है, मेरे दोस्त हैं, जिनको अल्लाह ने आवाम की खिदमत के लिए मुख्तार कर दिया है। हमें चाहिए कि जहाँ अल्लाह ताला ने हमें रिस्क दिया है इस शोबे में, तनख्वाहें लेते हैं गवर्नमेंट से, प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करके अपना रिस्क कमाते हैं, वहाँ हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला ने जिस नेक शोबे के लिए हमें मुख्तार किया है उस पर अपना भरपूर किरदार अदा करके न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस मुल्क के लिए एक नए मुफीद और कारगर इंसान बन सके। इन बात के साथ कि कौटा तहसील हेडक्वार्टर में मैडम फरहत इब्राहिम साहब ने, मोहतरम अमीर साहब ने और उनके तमाम स्टाफ ने गुज़श्ता कई सालों से जिस तरह मेहनत तंदही और चावल से काम किया है, जिस तरह उन्होंने इस इदारे को अपना समझ कर चलाया है और जिस तरह गुज़श्ता सालों में तहसील हेडक्वार्टर और DHQ को अपग्रेड किया गया है, उसमें बिलाशुबा गुज़श्ता हुकूमत का बेमिसाल किरदार मौजूद है। लेकिन उस किरदार के साथ साथ मैं इन तमाम मेरी बहनों को, उन तमाम डॉक्टर्स को और तमाम पैरामेडिकल स्टाफ को जो आज तहसील हेडक्वार्टर में काम करके और मुख्तलिफ DHQ में काम करके इस तहसील का नाम रोशन कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज मुझे जो बताया गया अभी तक इस पूरी तहसील में 4-5 केस फंस रहे और रिपोर्ट हुए, मैं समझता हूँ ये ना होने के बराबर है। तो
भी आप कमेटी पर मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबको कहता हूँ कि आप इस मुहिम को घर घर तक पहुँचाकर ये अंदर आने वाले दिनों में ये खुदा करे ऐसे पाँच बच्चे की रिपोर्ट ना हो, हम हर एक बच्चे को खसरे से, टीबी से, हेपेटाइटिस वायरस से और दीगर मुतल्लिक़ अमराज़ से बेचारे को अपना लगा कर सकें। यही वो हमारा करना है जो अल्लाह को पसंद है, यही वो हमारी मेहनत है जो रब्बुल इज़्ज़त को ज़्यादा अजीज है और शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने इस पेशे को ज़्यादा इज्जत बनाया है। कि मेरी बात के साथ अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हम मुनासिब हो और रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने रिज़्क़ के साथ साथ अपने शहर की, अपने इस इलाके के बच्चों की, बुजुर्गों की, बहनों की और आप सबकी खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब मोहतरम डॉक्टर आरिफ रईसी साहब, जिन्होंने बहुत ही मुफस्सल तरीके से पोलियो के हवाले से ब्रीफिंग दी। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब तकरीर के इख्तितामी लम्हात शुरू हो रहे हैं। मेरी तरफ से, महकमा सेहत की तरफ से और जनाब मैडम डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर टोटा डॉक्टर फरहत इब्राहिम साहब की तरफ से महकमा तालीम, महकमा बल्दिया, मीडिया और जितने भी हमारे माज़र सामने के कराम हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला और इस मुहिम में और इस सेमिनार में शिरकत की। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस मुहिम को कामयाब बनाए और तहसील कोहड़ा में खसरे का इंदा कोई केस भी ना हो। रिफ्रेशमेंट का इंतजाम